you must have seen several kinds of plants and animals. So there are certain organisms that we cannot see with our naked eyes. Let's take an example. Okay, suppose you take you go near a pond. Okay, you take some moist soil from there. Moist soil, you understand, no, with some water content in it. Okay. So and you just mix that soil in water. Okay, mix that thoroughly and let the soil settle down. Okay, so once the soil is settled down, when we take a drop of water, उस जो हमारा जो मिक्सचर था उससे हमने वाटर भी ले लिया. Okay, अच्छा, before moving further, you are comfortable with both the languages, English and Hindi, right? Yes, ma'am. Okay ना? हाँ, okay. So Samika, what will happen? एक beaker में हमने क्या किया? Moist soil. Keep it bilingual. Keep it bilingual, right? For the understanding, that's okay. I'm saying keep it bilingual. Okay, keep in both the languages. That's okay. Okay. Yes. So that's what I was confirming. Okay, Samika. So in that beaker, what we have done, we have taken some moist soil and mixed it with water. Okay. तो जब हमारी जो soil है वो water में mix हो जाएगी, it will settle down. हमें तब क्या करना है? Water का अगर हम एक droplet लें, ठीक है? If we take one droplet of water and we observe it under a microscope or magnifying glass, what will we observe? हम क्या observe करेंगे कि उसमें ना हमें छोटे-छोटे particles move करते हुए नजर आएंगे. We'll notice small particles moving around. ठीक है? So वो जो particles होते हैं जो हमें, वैसे अगर आप soil हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा ना. Soil में अगर आप देखते हैं naked eye से तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता है. बट उसी soil में अगर हम water में उसको mix कर दें तो उसी soil को अगर हम magnifying glass या फिर microscope से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे हमें. ठीक है, मूव करते हुए दिखेंगे. तो उन ऑर्गेनिजम्स को ही हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो वी कॉल इट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट मींस माइक्रो. माइक्रो मतलब क्या हुआ आपका? माइक्रो मतलब होता है छोटा, है ना, वेरी टाइनी और स्मॉल. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मींस when the organisms when the living organisms around us, they are too small to be seen under they are too small to be seen by our naked eyes, or that cannot be seen without microscope or magnifying glass. Those organisms are called microorganisms. ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के या बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के नहीं देख सकते अपनी नेकेड आईज से, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, Samika, I cannot see your screen. Why so? I wanted to. Later. We can yes, see. Yes, now that's. It is visible. Yeah, because actually this page is coming of my EduBag. Now I wanted to see. Yeah. So इतना समझ आ गया समीका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखोगे? Can you repeat? They are tiny particles which cannot be seen by naked eyes or without microscope. Why? They are tiny that particles can be seen only which can't be seen by naked eyes or Yes. without microscope. Yes, that can be seen only with the help of microbes of microscope. ठीक है, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है ना, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रो. जो साइंटिस्ट जो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, Microbiology. हाँ, and the scientists that study about microorganisms, those scientists are called microbiologists. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है, अच्छा, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, ये हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए और यूजफुल भी होते हैं. ठीक है, दे कैन बी हार्मफुल टू अस एंड दे कैन बी यूजफुल टू अस. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब हमारे हार्मफुल कैसे हो सकते हैं? उससे हमें बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकते हैं, है ना. अच्छा, उनके बारे में हम अभी चैप्टर में व्हेन वील मूव फर्दर तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, हाँ, यूजफुल कैसे हो सकते हैं? यूजफुल भी हमारे ऐसे ही होंगे, वो भी हम अभी आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे.
ठीक है। अच्छा तो ओके सर, जस्ट शेयर द स्क्रीन फॉर योर, हाँ ठीक है। So Okay. you may also share, Pallavi, right? The pages you may Sir, share the screen. हाँ. Actually, right now I'm not ready with this. Acha, I'm just that's okay. going. That's okay. Yes, Or yes, maybe sir, yes. Samika, can you share the content? Do you have in this device? Yes, sir, just a minute. So she It's may not a also. problem like that. I've just noted down certain points like. Yeah, no problem. Right. Yeah. Yes, sir. Okay. I'm new to this Zoom, na, Samika. Yeah, no, so- I can understand. That happens Yes, initially. sir. So there's an option of share screen at the bottom, right? Yes, sir. That I have seen. Share Yes, screen. yes. Yes. So maybe after the class, you can just navigate. You can just take the tour of. Yes, sir. Screen. And yeah. Okay. Samika, should I share? No, sir. You have that? Yes. Okay. It's okay, sir. I can. Yes. Just. Is it visible? Yes. Yes. That's fine. Okay. So, yeah, but we'll do one thing. We'll not go with these line to line. Okay, you can just do one thing. You can side by side. You can just go through this whatever I'm saying. आप साथ आप उसको देखते जाओ, ठीक है? But हम क्या करेंगे line wise मैं मतलब NCERT से वैसे आपको नहीं कराऊंगी. Although I'll cover each and everything. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा आई टोल्ड यू हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए एंड यूजफुल भी हो सकता है, ठीक है? ये हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें क्या पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है? काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हम उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। सॉरी, yeah. Am I audible? Yes, you're audible, Samika. Yeah. So now we'll move further to types of microorganisms. Okay. Yes, ma'am. So there are 5 types of microorganisms. Your voice is breaking. Are you trying to say something? No, ma'am. No. Yeah. Should I continue? Yes, ma'am. Samika? Yes, ma'am. Am I audible? Am I not audible? Now it's okay. Yes, Samika. Should I continue? Yes, ma'am. Yeah. So, okay. So what I told you, there are 5 types of microorganisms. Okay. What are they? Very first is आपका bacteria. All right. Then you have algae. Okay. Yes, ma'am. And protozoa Protozoa, and fungi and viruses. fungi and viruses. Okay. So these are the 5 types of microorganisms. What we have to do, we have to study about these 5 types of microorganisms in brief. ठीक है, ज़्यादा explain नहीं करना है हमें. Short briefing of all these 5 types of microorganisms. All right. अच्छा, before coming to this, to the types of microorganisms, one small thing. ये जो microorganisms होते हैं, ये found कहाँ होते हैं? Where are these found? ठीक है ना? As it is
given in your book also. Now, where are these microbes or microorganisms found? Microorganisms को microbes भी बोलते हैं, ठीक है? Microorganisms are also known Yes. as microbes, ठीक है? So these microbes, where are they found? So as it is mentioned in your book also, these microorganisms can be found everywhere, like any kind of environment. So be it very dry environment like in deserts, or be it very cold environment like icy cold areas. Okay, so these can be found in varying environment. Okay. Also, these microorganisms can be found in plants and animals also, and including human beings also. ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. All right. Okay. So another important point, Samika, microorganisms जो होते हैं, they are a little hardy. Hardy means they're hard because उनके क्या होते हैं, outer covering होती है. They have an outer covering around themselves. ठीक है? वो क्यों होती है? That is because जब कभी conditions unfavorable होती है ना microorganisms के लिए, unfavorable मतलब या तो बहुत ज्यादा ही dry हो गया, या बहुत ज्यादा means hot हो गया, या बहुत ज्यादा cold हो गया, तो what they do, they form an outer covering around them, and उस outer covering को हम बोलते हैं cyst. ठीक है, क्या बोलते हैं? Cyst. CYST cyst. ठीक है, तो ये कब करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? when conditions are not favorable. All right. Yes, ma'am. ठीक है ना? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने को क्या बोलता है? माइक्रोबायोलॉजी. जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है? देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं. दे कैन बी बोथ. Okay, then microorganisms can be found where it can be found in any kind of environment, be it very ice cold climate or be it very hot climate. Okay, it can be found inside the bodies of animals and even in human beings also. Okay, and another point, it forms when the conditions are not favorable. When the conditions are not favorable, they form an outer covering around themselves that is called cyst. ठीक है, इतने पॉइंट समझ आ गए? चले आगे? Yes, ma'am. हाँ, चलो. Yes. अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में. ठीक है, बैक्टीरिया. अच्छा, द टर्म बैक्टीरिया ये एक प्लूरल फॉर्म है. बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया की सिंगुलर फॉर्म क्या हो? Some network issue which is happening. Yes. Yes, Samika, am I audible? Yes. Okay. So is my connection weak or it is weak from your end? I'm not able to. I think Pallavi, what you can do, you can keep the camera off for some time. Okay, I can keep the camera off. All right. Yes, yes. Okay. Yeah. So Samika, I'm audible, no? Yes, ma'am. Okay. So, what I was asking, we'll start with the Singular very form of first. bacteria. Yeah. The singular form of bacteria is bacterium. Bacterium. Okay. Yeah. So bacterium now. Bacteria क्या होता है? Bacteria simple unicellular living things होते हैं. ठीक है. The word unicellular, are you familiar with this term? Unicellular? Just tell me. Ma'am, like connected to each other, I guess. Not actually connected. Acha, I think this chapter cells you haven't yet studied, na? Cells you haven't yet studied, na? In 7th class it was not there. Ma'am, in 7th class it was not there. In 8th it is. Yes, 8th and I think in 9th also it will be there. Okay. So, Samika, unicellular organisms, मतलब वो होता है that is made up of a single cell.
ओके, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। इसके बारे में आपको डिटेल में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्हेन जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट नाउ यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट जो हमारा बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके सो अच्छा, बैक्टीरिया भी हमारे कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? बैक्टीरिया हमारे एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है, सॉइल में भी होता है, एंड ऑल्सो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड इवन इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। जैसा भी मैंने बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हो सकते हैं, है ना। सो Yes. वही एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा बैक्टीरिया, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ हो सकता है? एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, सॉइल में हो सकता है, एंड इन बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया का, दैट दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। वो क्या करते हैं, अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी है तो वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो फास्ट होता है, और वो मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई से आप क्या समझे कि अगर एक बैक्टीरिया में सिंगल है ना, सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको हम बैक्टीरियम बोलेंगे, एक से ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया, प्लूरल फॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक जो हमारा बैक्टीरियम होता है ना, एक बैक्टीरियम वो क्या करता है, वो 10 to 30 मिनट्स के बीच में, मतलब 10 से लेके 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में ही वो 1 से 2 हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं वो, मतलब डिवाइड नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। Yes, वन ma'am. बैक्टीरियम जो है, वन बैक्टीरियम इन अराउंड 10 to 30 मिनट्स इट टेक्स 10 to 30 minutes to form 2 bacteria, you can say, ठीक है। am I understandable? आपको समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. I hope I'm not going too fast. No, ma'am. So आपका क्या है, बैक्टीरिया का एक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, ओके। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है आपका, अच्छा अगर अब हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम सॉइल को देखें ना, सॉइल अभी हमने पढ़ा है कि सॉइल में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अगर हम थोड़ी सॉइल लें, अराउंड 1 ग्राम ऑफ सॉइल अगर हम लेते हैं ना, सिर्फ वो 1 ग्राम ऑफ सॉइल में ही 2.5 बिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। समिका, आप लगा सकते हैं, मतलब 2.5 बिलियन, बिलियन कितना बड़ा नंबर है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं कि आप सिर्फ अगर आप 1 ग्राम ऑफ सॉइल भी लेते हो ना, तो उसमें भी आपके 2.5 बिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Yes, इतने ma'am. सारे बैक्टीरिया, इतने in such a great number of it's such a great number bacteria is present, है ना। Yes, अच्छा, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, हम आपके 3 शेप्स में होते हैं, ठीक है, 3 शेप्स में होते हैं। देखो बुक से पढ़ के मुझे बताओ कौन कौन सी शेप्स है, 3 शेप्स आपको नजर आ रही है ना। Cock and spirilla. हाँ, यस, रॉड शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, एंड स्पाइरल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम सिर्फ इसके बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे जब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो विल सी कि हमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे, आई विल फाइंड सम एग्जांपल्स जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स दे पाऊँ कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन से शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी के लिए यू जस्ट रिमेंबर, that there are 3 types of bacteria that are found. They are found in 3 different shapes: rod shape, then spherical, and then spiral. Okay. Yes, ma'am. ठीक है, तो बैक्टीरिया के एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बैक्टीरिया में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब मैंने क्या बताया? Single. With हाँ, single yes, single cell, है ना। Then secondly, it is found in almost everywhere, like in air, in water, in soil, and human including body. human bodies also, है ना, in bodies of other organisms including human beings, ठीक है। Then third point हमने क्या पढ़ा? They grow and multiply very fast. Explain third point, like not fourth, like one bacterium divides to form 2 bacteria. वन बैक्टीरिया, अच्छा इसका मतलब सिर्फ ये है, जैसे हमने बोला ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं,
है ना। तो वो इसी का एग्जाम्पल हमें बता रखा है कि बैक्टीरिया इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कि आप अगर 10 से 20 मिनट में भी ना 10 से 20 मिनट में एक जो बैक्टीरिया का एक वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। Okay, ma'am. ये सिर्फ ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है ना, वो मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कि वो 10 से 20 मिनट में या फिर हार्डली 30 मिनट्स में वो एक जो बैक्टीरिया है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, Yes. वैसे ही वो 2 से 4 में हो जाएगा जब अनदर 10 to 20 मिनट्स होंगे, तो ऐसे ऐसे करके वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. हाँ, देन सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि इतने लार्ज नंबर में भी होते हैं कि नियरली 2.5 2.5 बिलियन बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ सॉइल, One. है ना। तो ये जो आपके बुक में जो नंबर दे रखा है ना, यू मस्ट बी सीइंग दिस 25000, दिस इज 2.5 बिलियन, है ना। Yes. या फिर हम इसको 250 करोड़ भी आप काउंट कर सकते हो, बट इसको क्या बोलते हैं 2.5 बिलियन हम इसको काउंट करेंगे। तो इतना बैक्टीरिया इट इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉइल, है ना, 1 ग्राम ऑफ गार्डन सॉइल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको ऐसे रिकॉल करना है कि व्हेन एवर यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन, तो ये आप बुलेट्स में ये सारे पॉइंट्स आप पॉइंट बना के आप मेंशन कर सकते हो, है ना, जब भी बैक्टीरिया के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आए तो। ठीक है, Yes. देन लास्ट पॉइंट जो हमारी 3 डिफरेंट शेप्स होती है बैक्टीरिया की, कौन कौन सी हमने पढ़ी, डॉट शेप Bacilli, पढ़े, co- हाँ, yes, ma'am. Coffee बेसिली, and कॉकटेल एंड स्पाइरला, है ना। तो बेसिली कौन सी, डॉट शेप, स्फेरिकल एंड स्पाइरल, ये हो गया आपका बैक्टीरिया। ठीक है, yes, शैल वी मूव फर्दर। yes. ओके, नेक्स्ट है आपका एल्गे। अच्छा, एल्गे क्या होता है, एल्गे आपका होता है बेटा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना। Lake and pond. I guess. हाँ, राइट राइट राइट, लेक्स एंड पॉन्ड्स में आपने नोटिस किया होगा वाटर में जो ग्रीन ग्रीन सा जो Green. आपने कभी डिपॉजिट देखा होगा, है ना, जिसको हिंदी में काई भी बोलते हैं, सुना, जिसे बोलते हैं Yes. काई जंगे, है ना। हाँ, दैट इज नथिंग बट दैट इज एल्गी ओनली, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं उसको। तो एल्गी क्या होते हैं, एल्गी होते हैं ना हमारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा, इनको प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला गया है, क्योंकि दे हैव सेल Color वॉल and- एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इनके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास भी आपको पता है क्लोरोफिल होता है ना, तो इसीलिए इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, इसीलिए इनको प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स बोला गया है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो ये क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल है तो Photosynthesis. हाँ राइट, तो अगर क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, है ना। तो इससे हमें सेकंड पॉइंट मिल गया कि दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, Photosynthesis. है ना। हाँ, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, भले ये प्लांट्स के जैसे होते हैं, मतलब बोला है कि क्लोरोफिल है तो ये प्लांट्स के जैसे होते हैं, बट अनलाइक प्लांट्स दे डोंट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, ऐसे नहीं होता है ना। भले ही बोला गया है कि प्लांट्स की तरह होता है, क्लोरोफिल भी होता है इसमें और ये फोटोसिंथेसिस भी अंडरगो करते हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की तरह दिखते हैं कि इसमें प्रॉपर रूट्स हैं या फिर प्रॉपर लीव्स हैं, ऐसा नहीं होता है ना। देखा होगा आपने कभी कहीं, तो नहीं होता कि उसमें लीव्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना, हाँ, but वो बहुत soft and slippery है ना। होता है. हाँ, वो बहुत सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, राइट राइट। तो क्या है, तो प्लांट्स की तरह इनमें इसमें क्लोरोफिल तो होता है, बट अनलाइक प्लांट्स इसमें दे डोंट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एल्गी जो होते हैं हमारे, वो अगर हम सेल्स की बात करें तो वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, है ना। यूनिसेल्युलर जैसे कि हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, वैसे ही यूनी का मतलब देखो, यूनी का मतलब होता है सिंगल, है ना, और मल्टी का मतलब क्या होता है, Many. मल्टी का मतलब बहुत. एक से ज्यादा, है ना, मोर देन वन, है ना। तो मल्टी सेल्युलर Yes. का मतलब है अगर वो मल्टी सेल्युलर मतलब मोर देन वन सेल्स उसके अंदर हो तो वो एल्गे होता है। तो वो हमारा यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा, तो ज्यादातर एल्गे जो होते हैं वो हमारे वैसे हमें वाटर में ही मिलते हैं,
जैसे वाटर वाटर में मतलब जैसे पॉन्ड्स में हो गया, लेक्स में हो गया, या सी वाटर के साइड में कहीं ऐसे हो गया जहाँ पे मतलब वाटर हो आसपास ना, ज्यादातर वही मिलते हैं हमें। बट ये कहीं कहीं ना सॉइल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्ट सॉइल जो होती है ना, मॉइस्ट मतलब गीली मिट्टी जो होती है, अच्छा गीली मिट्टी Yes. है उसमें मतलब इसका मतलब वाटर कंटेंट है, गीली मिट्टी है तो, है ना। तो मॉइस्ट सॉइल में भी ये ग्रो कर जाते हैं एल्गे ना। देन Yes. ये बार्क्स ऑफ ट्रीज में भी कई बार हमें दिख जाएंगे, Yes, बार्क्स ma'am. ऑफ ऐसे ट्रीज, मोटे मोटे होते हैं. है ना। हाँ, तो बार्क्स ऑफ ट्रीज में भी कभी आप नोटिस करना, उसमें भी होते हैं। बस ये होता है कि मोस्टली जो है ज्यादातर हमें वाटर में ही मिलते हैं, वेर एवर देयर इज वाटर, है ना। एल्गे ज्यादातर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही जो ग्रीन ग्रोथ होती है वाटर में, दैट इज नथिंग बट एल्गे। ओके, तो Yes. इसमें तो ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, इसमें बस हमारे पास यही पॉइंट्स है। दोबारा से एक बार फटाफट से हम इसको वो करते हैं, रिपीट करते हैं। एल्गी क्या होते हैं? दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना। Yes. तो उसमें क्या होता है, अच्छा इसमें भी आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, ये मैंने बोलना भूल गई थी शायद। हाँ, दे आल्सो हैव सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल विद इन द सेल्स, है ना। अच्छा क्लोरोफिल है तो दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। And then Yes. unlike plants, they don't have proper roots, stems or leaves. ठीक है। Yes, ma'am. Then almost all algae live in water, like in ponds, lakes or sea water. And but you can also find some algae in moist soil or barks of trees. यहाँ भी आपको देखने को मिल सकती है ना। Yes. अच्छा, आई थिंक आपकी बुक में इसका वो भी होगा एल्गी का। यू कैन जस्ट टर्न द पेज, आप खुद देख लो मतलब, है ना। आपने टर्न करके अगर फिर बुक केप्ट है, Yes, यहाँ ma'am. पे Like आपको एल्गी के उसमें है ना एग्जांपल्स दे रखे हैं। हाँ, दिस एग्जांपल ना, किसका एग्जांपल है देखो। एक तो इसमें हमें स्पाइरोगायरा का एग्जांपल दे रखा है ना। देयर इज Chromidomonas. स्पाइरोगायरा, ये एक टाइप का एल्गी होता है। देन एक है हमारा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये भी एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। इसके एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, बस इसको आपको ये जो वर्ड्स है ना ये याद रखने हैं कि आपका जैसे व्हेनेवर देयर विल बी एनी क्वेश्चन आस्क्ड कि एल्गी के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखो, तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। But like algae तो green color का होता है and your fucus and laminaria का जो है एग्जांपल्स में आपको एक सॉरी बेटा, कैन यू प्लीज रिपीट। एल्गी क्या algae is बोला of आपने? green color as that contains chlorophyll, but in fucus यस and यस। laminaria दोनों तो yellow color के हैं. So कहाँ पे, कौन से येलो कलर के? दिस वन C% स्पाइरोगायरा यू आर टेलिंग? no ma'am, fucus and laminaria, C and D. C and D, where is it? I cannot see. This one. हाँ, can you please zoom it? Yes अच्छा, ma'am, there this is one. another, अच्छा there are 4 examples given in your book, right? I haven't seen that. Yes ma'am. Okay, so क्या होता है ना, they can be, अच्छा अभी इसमें बुक में क्या है, आपको एक्चुअल पिक्चर वैसे नहीं दी होती है। क्लोरोफिल का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा ही वो क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है तो वो पूरा ही ग्रीन कलर का होगा ना। इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ कलर्स आल्सो, ठीक Okay है। ma'am. क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है बस, तो वो होने से आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। बट इसका मतलब दैट डज नॉट मीन कि आपका पूरा ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रीन कलर का होगा। दैट डज नॉट नेसेसरली बी ऑल ऑफ दैट ग्रीन कलर, ओके। Yes ma'am. हाँ, ठीक है। तो ये आपके 2 हो गए, कौन कौन से? बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया और एल्गे हमने पढ़ लिया, ठीक है। Algae. चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है Yes ma'am. प्रोटोजोआ, है Protozoa. ना। अच्छा, प्रोटोजोआ में क्या होता है? प्रोटोजोआ भी हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। सो दीज आर सब कॉमन पॉइंट्स। देखो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हमारे सब में सेम ही बैठ रहे हैं, सेम मतलब ये सारे, जैसे फर्स्ट यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया, फिर एल्गे हमारा यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, देन प्रोटोजोआ हमारा यूनिसेलुलर है। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स है ना, मतलब सेम पॉइंट्स है, तो इसको क्या है आप नोट भी करते रहो साथ साथ। इससे क्या है दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू व्हेन यू रिवाइज दिस टॉपिक, नो, ठीक है। ओके, एम आई ऑडिबल? हाँ, चलो तो Yes नेक्स्ट। ma'am. हाँ, तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, नंबर 1 थिंग, है ना। अच्छा, प्रोटोजोआ में क्या होती है? एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है।
जैसे एल्गी में क्या था, एल्गी में तो हमारा प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्योंकि उसमें क्लोरोफिल था, है ना? Yes, ma'am. ठीक है। प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोजोआ में हमारी एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एनिमल एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस है? एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दोनों लिविंग होते हैं, प्लांट्स भी लिविंग, एनिमल्स भी लिविंग होते हैं। Yes. पर प्लांट्स प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स अपनी जगह से नहीं हिलते ना, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, whereas animals can move, है ना? Yes. हाँ, तो क्या होता है, प्रोटोजोआ की भी प्रॉपर्टी होती है, दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे कैप्चर एंड ईट फूड। क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये मूव भी कर सकते हैं, इतने माइक्रो मतलब होते टाइनी ही हैं, बट दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो कैप्चर भी करते हैं फूड और ईट भी कर लेते हैं फूड। कैसे कर लेते हैं, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके भी ना, मतलब फीड, दे कैन दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आ रहा है पॉइंट समझ में? अच्छा, Yes. आपने पैरासाइट्स, पैरासाइट एक साइड एक टर्म होती है, उसके बारे में सुना है? पैरासाइट्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. It is a host also, इट like इज, parasitic plants. हाँ, पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स को अगर हम बोले तो पैरासाइट्स वो होते हैं ना जो दैट लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, Yes, है ना? ma'am. पैरासाइट्स वो होते हैं दैट लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये भी पैरासाइट्स होते हैं। ये दे लिव इन दी बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। इससे क्या होता है, ये हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आ सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे ना हमें डिजीजेस, काफी डिजीजेस भी होते हैं, जैसे कि डिसेंट्री हो जाती है ना? मलेरिया, मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया इज कॉज्ड बाय दिस, मतलब जो ये प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है। मलेरिया वैसे तो इंसेक्ट बाइट से होता है ना, बट इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो ये हो गया हमारा इसके डिजीजेस जो कॉज्ड होता है, ये हमने ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके डिजीजेस है ना, कॉज्ड बाय दीज सेवरल काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये भी आगे आएंगे चैप्टर में, आगे हम पढ़ेंगे, है ना? इसलिए मूव फर्दर। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इसके? अमीबा है, देन एक आपका पैरामीशियम है, देन आपका प्लाज्मोडियम है। इसके आई थिंक आपको डायग्राम्स भी गिवन है बुक में, है ना? Yes, ma'am. And हाँ, drought. इसके डायग्राम्स भी गिवन है। तो ये क्या है आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ, दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, ये जो प्लाज्मोडियम आपको गिवन है ना, प्लाज्मोडियम है नहीं, प्लाज्मोडियम आई थिंक नहीं गिवन है बुक में, नहीं है ना? इट इज नॉट गिवन देयर इन बुक, नो? No, ma'am. Like Giardia, Amoeba, Paralysis. जियार्डिया इज, हाँ, जियार्डिया इज गिवन। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप एक पॉइंट और ऐड करना, एक एग्जाम्पल इसका बुक में ही चाहे आप प्लाज्मोडियम, इसलिए क्योंकि ये इसलिए मैं लिखवा रही हूँ क्योंकि प्लाज्मोडियम को ना कॉमनली हम क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम को ना, प्लाज्मोडियम इज कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट आल्सो। ठीक है, कई बुक्स में आपको मिल भी जाएगा। आई थिंक एनसीईआरटी में मस्ट नॉट हैव गिवन। ये एनसीईआरटी ओनली यू हैव शेयर्ड, नो? ये जो आपने बुक Ma'am, शेयर किया Ratna एनसीईआरटी है Sagar. ना? No, ma'am. Ratna Sagar. अच्छा, दिस इज नॉट एनसीईआरटी। Yes, ma'am. ओके ओके, सो which publication is this? Ratna Sagar. रत्ना सागर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या है आपके ये एग्जांपल्स हो गए, है ना? तो एक प्लाज्मोडियम बस आप इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है? एंड ऑल्सो ब्रैकेट में लिख लेना Yes. मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, ठीक है? Yes. तो प्रोटोजोआ में तो इतना ही है, प्रोटोजोआ में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, यही है बस। क्या क्या पॉइंट्स है? एक ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है? यूनिसेलुलर क्यों होता है? बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे कैप्चर एंड ईट फूड, है ना? इसलिए। एंड देन अच्छा, प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं? प्रोटोजोआ भी दे कैन लिव इन वाटर आल्सो एंड दे कैन लिव इन सॉइल आल्सो, ठीक है? Yes, ma'am. देन अनदर पॉइंट वाज, कुछ जो प्रोटोजोआ जो हमारे होते हैं, सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स आल्सो, some are parasites, ठीक है? This is another point. So parasites that live in the bodies of other organisms.
ओके एंड एग्जांपल्स आपके गिवन है, एग्जांपल्स हो गए इसके अमीबा, पैरामीशियम, देन जियोडिया एंड प्लाज्मोडियम। ओके Yes, ma'am. चलो वील मूव फर्दर नाउ। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन सा? फंगाई। ठीक है, Yes, ma'am. Just अब फंगाई क्या होता है? फंगाई भी आपका प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ठीक है, बट प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं बट इसमें दे डू कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, होते प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है बट क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें। ओके yes, ma'am. हाँ, तो यू कीप ऑन रिवर्टिंग, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए कि कनेक्शन गया नहीं है कहीं, ऐसा ना मैं कीप ऑन सेइंग, और ठीक है, कीप रिवर्टिंग बैक आल्सो। हाँ, Yes, तो जो ma'am. ये फंगाई जो होते हैं ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं बट दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब क्योंकि क्लोरोफिल नहीं कंटेन करते तो दे कांट फोटोसिंथेसाइज, है ना, फोटोसिंथेसिस भी वो अंडरगो नहीं कर सकते, है ना। Yes, ma'am. देन नेक्स्ट अगर हम इसके सेलुलर होने की बात करें तो फंगाई भी आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, फंगाई भी क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। ओके Yes, ma'am. हाँ, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंगाई में, अच्छा फंगाई जैसे हमने प्रोटोजोआ का पढ़ा था, प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था कि सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स, सेम फंगाई में भी होता है। फंगाई भी क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट्स के अलावा इसमें एक और टर्म हमारी ऐड हो जाती है, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बुक में सेप्रोफाइट्स, है ना। तो जो फंगाई हमारे होते हैं दे आर ईदर पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स। ओके Yes, ma'am. ओके, तो सेप्रोफाइट्स क्या हो गए आपके? सेप्रोफाइट्स क्या क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स हमारे वो होते हैं दैट फीड ऑन वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे Yes. हम देखते नहीं है कि आपने बचा हुआ खाना है, आपने फेंक दिया कहीं ऐसे ही ना, डिस्पोज कर दिया, या फिर कोई डॉग किसी गाड़ी के नीचे आ गया, मतलब डेड, कोई भी डेड एनिमल है अगर, ठीक है, तो उसमें वो कीड़े नहीं लग जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत अगर दिन तक वो ऐसे ही रखा रहे तो उसमें क्या लगता है, कीड़े से लग जाते हैं ना। तो Yes. जो कीड़े होते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फंगाई भी हो सकते हैं, मतलब फंगस वैसे वैसे भी लगता है हमारे खाने में, वैसे भी लग जाता है।